Hello, dear children. Welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing well, children. Hope all of you are hale and hearty. बच्चा CBSE बोर्ड क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कोड 083 के टर्म 2 के लिए 35 on 35 के टारगेट से आई रिसेंटली स्टार्टेड विक्ट्री फॉर बोथ सीरीज. इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो है. इन द फर्स्ट वीडियो I had given an explanation of the course outline for term 2 paper. I hope you have watched it. Just in case you have not watched it, please do watch it before you watch this video. Okay. In this video, the second video of this series, I have come up with the sample paper pattern analysis of your class 12th computer science paper. CBSE recently uploaded the sample papers for all the main subjects, main electives, on its official website. So that sample paper has to be understood because sample papers are, they are the main thing which we must know thoroughly. We must do thoroughly. We must understand their pattern thoroughly so that, we get an idea of how we have to attempt the main exam. So with that intention, I have come up with this in-depth analysis of the CBSE sample paper. And this is with computer science code 083 for class 12th. Your exam will now be of 35 marks because term 1 you've already given for 35 marks. So term 2 will be of 35 marks and the duration of the exam now would be 2 hours. This would be a subjective paper, children, and the detailed analysis of which subjective paper, 2 hours paper, and with the given course of term 2. This I have covered in the course outline video. But still, just to give you a quick recap, in term 2, you will get computational thinking and programming. Part 2, stacks are going to come for 5 marks. Computer networks are going to be asked for 10 marks. And database management, including Python's interface with MySQL, that would be asked for 20 marks. So that will be a fight of 35 marks in the theory examination. So keeping this in mind, 5 marks stack, 10 marks networks and 20 marks database management. Let's now jump to the sample paper and I'll keep switching between these two windows, children, my analysis that I've done and with this sample paper. So that, this video is not going to be an explanation of the sample paper's answers. It is going to be an explanation of the sample paper pattern. So pay attention as you watch this video and do take out these printouts and keep a note of things, the manner in which you have to attempt the paper. Fine. So बच्चा बात करते हैं. CBSE ने अपनी जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं. इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया है. पहला पॉइंट मैं यहाँ से ले लेती हूँ दैट द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू A, B, C 3 sections. So let's proceed with the section wise analysis now. बच्चा सेक्शन A जो आपका होगा ना, that is going to carry 14 marks. ठीक, सेक्शन A will be of 14 marks. मैं यहाँ लिख देती हूँ सेक्शन A is going to carry 14 marks. So section wise marks would be, I'll just write down here. Okay. So this is going to be of 14 marks. It is going to have number of questions in this section would be 7 and each question will be carrying 2 marks. So 7 into 2, 14 marks का आपका section A होगा बच्चा. ठीक, इसमें आपके 7 questions होंगे. Their numbers would be 1 to 7. 1 to 7 numbering होगी and you will get an internal choice. Just see, internal choice in question number 7. 1 to 6 में there will be no internal choice. In question number 7 you will have an internal choice. और अब की बार आपका पूरा पेपर attempt करना compulsory है. So even if you are getting an internal choice, you have to attempt at least 1 out of the 2 given internal choices. ठीक है. So section wise अब मैंने इस तरीके से इसका बच्चा एक layout ready किया है. पहले मैं आपके को बताऊंगी क्वेश्चन नंबर, देन वेदर इट हैज पार्ट्स और नॉट, कितने पार्ट्स हैं वो सेकंड कॉलम में आएगा. देन इज इंटरनल चॉइस गिवन इन द एनी ऑफ द क्वेश्चंस, दैट विल बी द थर्ड कॉलम. विच यूनिट विल द क्वेश्चन बी बेस्ड अपॉन, दैट विल बी द फोर्थ कॉलम. व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, एंड देन हाउ मेनी यूनिट वाइज मार्क्स वी आर गोइंग टू हैव. यूनिट वाइज मार्क्स कैसे होंगे इस सेक्शन से. ठीक है. यू हैव Python says stack, you have networks and you have database management. So how will that be spread across each section? I'm going to take this up. Fine. So अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की.
ठीक है, ये आपका आया है बेटा सैम्पल पेपर में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, दैट इज इट हैज कम फ्रॉम द स्टैक पार्ट। ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज सेइंग गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक। 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया, 1 मार्क फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कोई पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देयर इज नो पार्ट, देयर इज नो इंटरनल चॉइस, and it is going, they're asking you a simple concept, what are the 2 characteristics of stack that you know, you have to write them down, and this is going to give you 2 marks. Fine, let's move to question number 2. It has been asked from computer networks. Fine, question number 2, it has been asked from computer networks. There are 2 parts in this question. In first part they have asked full forms, 2 full forms, and in the second part, the second part of this question is an understanding based question. Let's see what is the question. Expand the following. 2 full forms have been asked, half mark each, 1 mark की ये होगी। and out of the following which is the fastest wired and wireless medium of transmission, ये बहुत frequently asked question है CBSE का। तो आपको बहुत सारे ट्रांसमिशन मीडियम्स दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया वायर्ड फास्टेस्ट कौन सा है, वायरलेस फास्टेस्ट कौन सा है। सो ऑब्वियसली आपको समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। सो 1 into 2 मतलब 1 मार्क के 2 पार्ट्स आपका ये 2 मार्क्स पे यूनिट वाइज कवर होगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। मैं एक साथ स्क्रीन पर ले लेती हूँ बच्चा, ये सारे क्वेश्चंस 3 से 4 तक। ठीक है, दैट मीन्स देयर आर 5 क्वेश्चंस इनटू 2। 10 मार्क्स की आपसे यहाँ पर नेटवर्किंग पूछी गई है बच्चा, सॉरी RDBMS पूछा गया, आई एम सो सॉरी, डेटाबेस मैनेजमेंट से आपका ये आया है। 2 मार्क्स स्टैक आ चुका है, 2 मार्क्स आपका नेटवर्क्स आ गया है, और अब 10 मार्क्स 5 क्वेश्चंस में स्प्रेड होकर आपको दिए गए हैं 10 मार्क्स का टोटल वेटेज डेटाबेस मैनेजमेंट को। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 हैज टू टेल। इट हैज नो पार्ट्स, इट हैज नो इंटरनल चॉइस, और इसको पूछा गया है SQL के डेटा टाइप से। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन char n and varchar n data types with respect to databases. char और varchar का मीनिंग पता होना चाहिए, char और varchar की इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया और समझ पर भी बेस्ड है, यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। कितने मार्क्स में पूछा है बच्चा ये आपसे? 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक, 4th क्वेश्चन यहां से दिखाकर फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ। 4th क्वेश्चन आपका आया है इंटरफेस ऑफ पाइथन विद SQL से। ठीक है ना, सो आपको एक लाइन दी गई है यहाँ पर। ठीक, रिजल्ट सेट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग कर्सर ऑब्जेक्ट and by given the following statement. There are 2 parts in this question, A and B, and they are asking you how many records will be returned by this fetch one method and what will be the data type of my data object after the execution of this command. So let's see what type of a question this is. This is from interface of Python with SQL. अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको कर्सर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको फेच वन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए फेच वन कैसे वर्क करता है, क्या रिटर्न करता है। सो ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया 4 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 2 मार्क्स। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 4 पार्ट्स लेकर आया बच्चा। ठीक है, कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, SQL पर बेस्ड है। ठीक है, 4 क्वेरीज आपको गिवन है बेस्ड ऑन सिंगल टेबल, एक टेबल पर बेस्ड 4 क्वेरीज गिवन है, आपको उनका आउटपुट बताना है बेटा। अब क्वेरी का मतलब पता होगा, क्वेरी कैसे चलती है, तभी तो आप आउटपुट निकाल पाओगे। तो ये भी कैसा हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, there's a table, see write outputs of queries A to D based on the table furniture। सिंगल टेबल है बच्चा फर्नीचर, A to D आपसे यहाँ पर 4 पार्ट्स पूछे गए हैं, इनके आपको आउटपुट्स देने हैं। सो क्वेरी को समझ के ही आप आउटपुट लिखोगे। ठीक है ना, सो ये भी आपका हो गया 2 मार्क्स में, हाफ मार्क ईच एक क्वेरी करेगी। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 2 पार्ट्स लेकर आया है, इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट में SQL और RDBMS दोनों से पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में SQL कमांड पूछी गई है और सेकंड पार्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। देख लेते हैं, विच कमांड इज यूज्ड टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस। सो आपसे क्या पूछी गई, एक SQL कमांड कि आपको लिस्ट ऑफ टेबल्स अगर देखनी हो डेटाबेस से तो कैसे देखोगे। 1 मार्क इसका हो गया। गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इक्विजॉइन एंड नेचुरल जॉइन, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। RDBMS का कॉन्सेप्ट है, जॉइन और इक्विजॉइन 2 टाइप्स के जॉइन
जॉइन पूछे गए, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, एंड उनमें एक डिफरेंस आपसे पूछा गया. सो दिस इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. सो ये दोनों पार्ट्स आपके मिला के बच्चा, ये दोनों पार्ट्स मिलाकर आपके कैरी करेंगे 1 मार्क ईच, यानी कि 2 मार्क्स. ठीक. फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन विद 2 पार्ट्स, एंड नाउ दिस हैज एन इंटरनल चॉइस. फाइन. इसमें पूछा गया डेटाबेस मैनेजमेंट RDBMS कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू SQL टेबल्स. देख लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है पार्ट ए भी और पार्ट बी भी. इंटरनल चॉइस आई है बच्चा इसमें. देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चा. ये एक मूवी डिटेल्स टेबल गिवन है. मूवी डिटेल्स दिखा देती हूँ मैं आपको. इस पर बेस्ड इन्होंने आपसे 2 कॉन्सेप्ट्स पूछे हैं. डिग्री कार्डिनलिटी बताइए इस टेबल की, विच फील्ड यू शुड मेक प्राइमरी की विद जस्टिफिकेशन. सो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स की. ठीक. या और पार्ट में एक और टेबल दे दिया है, शेड्यूल टेबल. आपको कैंडिडेट की बतानी है फ्रॉम द टेबल्स मूवी डिटेल्स. ऊपर वाले टेबल पर बेस्ड दोनों को कनेक्ट करके ही इन्होंने पार्ट्स बताए. कैंडिडेट कीज फ्रॉम मूवी डिटेल्स एंड कंसिडर द टेबल शेड्यूल एंड व्हाट विल बी द फॉरेन की. What will be considered as foreign key if table, movie details and scheduled are related. So अगर इनमें relationship establish की जाए, so what will be the foreign key? Which column will act as the foreign key in this schedule table? Fine. So this is like based on SQL tables. आपसे क्या पूछे गए RDBMS concept, या तो ये 2 parts attempt करोगे या ये 2 parts attempt करोगे. ठीक है. So this is like understanding based both the parts. This completes the analysis of section A. एक बार फिर से देख लेते हैं. Section A में क्या था बच्चा? 7 questions थे, 1 to 7. 2 marks each थे. So ये section हुआ 7 into 2, 14 marks का आपका ये section हो गया. ठीक. इंटरनल चॉइस है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में. ठीक है. ओनली एंड ओनली इन क्वेश्चन नंबर 7. ये आपके यूनिट स्टैक्स को, पाइथन को कवर करता है 2 मार्क्स में, यानी पाइथन अब बच गई 3 मार्क्स की. 5 में से 2 यहाँ कवर हो गए. नेटवर्क्स कवर किए 2 मार्क्स में, यानी 10-2 मार्क्स का यहाँ कवर हो गया, यानी 8 मार्क्स का आगे आएगा. और 20 मार्क्स के डेटाबेस में से 10 मार्क्स यहाँ कवर हो गए, यानी 10 मार्क्स आगे पूछे जाएंगे. ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड टू सेक्शन बी एनालिसिस. यहाँ पर भी हम बढ़ जाते हैं सेक्शन बी पर. सेक्शन बी एज इट इज रिटन, देयर आर 3 क्वेश्चंस बच्चा. 9 मार्क्स का सेक्शन है, 3 क्वेश्चंस हैं, मार्क्स पर क्वेश्चन भी 3 हैं. सो 3 into 3 आपका ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सेक्शन हो गया बच्चा. क्वेश्चन नंबर्स हैं 8 to 10, 8, 9, 10. यू हैव एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 8. पहले ही क्वेश्चन में इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है. सो लेट्स प्रोसीड with the analysis of this section. See, question number 8 में बच्चा एक्चुअली पार्ट्स नहीं है, इन्होंने 2 बुलेट पॉइंट्स दिए. ठीक है. दे हैव गिवन 2 बुलेट पॉइंट्स, पार्ट्स नहीं दिए गए हैं. इंटरनल चॉइस आई है इसमें. ये बेस्ड है आपका स्टैक पर. 3 मार्क्स का स्टैक अभी बच गया था ना, 2 मार्क्स का तो सेक्शन ए में आ गया. और ये आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा. प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है. आपसे 2 यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखने को मांगे गए हैं. 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बैठेगा. देख लेते हैं. सो जूली हैज क्रिएटेड अ डिक्शनरी. ये पूरा क्वेश्चन है. क्वेश्चन मैं इसलिए रीड नहीं करी क्योंकि मैं इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी लाऊंगी, बट फिर भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. राइट अ प्रोग्राम विद सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. पुश द कीज of the dictionary into a stack. ठीक. and pop and display the content of the stack. तो पुश और पॉप 2 ऑपरेशन स्टैक के. पुश मतलब ऐड करना और पॉप मतलब रिमूव करना. ये आपसे मांगा गया और सैंपल कंटेंट भी आपको दिया गया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स राइट अवे. ठीक है ना. तो एक्सप्लेनेटरी वीडियो में मैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी. स्टैक बेस्ड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया. अब इसके और पार्ट पर आओ. और पार्ट में व्हाट आर दे आस्किंग. और पार्ट में भी इन्होंने ये बोला एक लिस्ट है कंटेनिंग 10 इंटीजर्स. आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखने, सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस to perform the operations, like you have to traverse the content of the list and push the even numbers from it into a stack. बहुत easy question है. pop and display the contents of the stack. sample input output आपको given है. so 3 marks में आपका stack आया है प्रोग्रामिंग बेस्ड. 3 marks का सेक्शन बी में आ चुका है, आया है. 2 marks का A में आ चुका है. so this completes the Python portion from your question paper. 3 + 2 5 marks का आपका Python cover हो गया. Let's proceed to question number 9. Question number 9 is for 2. It is having 2 parts. ठीक है ना. It is based on database management, SQL and RDBMS concept. इस पर based है बच्चा. Database management, SQL and RDBMS concept. Again इसमें इन्होंने पूछे हैं आपसे एक SQL कमांड पार्ट 1 में और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है बच्चा ये
पार्ट 2 में देखते हैं इसको। 9th क्वेश्चन में इन्होंने बोला टेबल हैज बीन क्रिएटेड, आइटम टेबल विद दीज फील्ड्स, गिव एसक्यूएल कमांड टू ऐड अ न्यू फील्ड डिस्काउंट टू इट्स। ऑल्टर करने का कमांड आएगा, इसमें नई फील्ड ऐड करनी है आफ्टर दीज गिवन 4 फील्ड्स। सो दिस हैज कम फॉर 1 मार्क। ठीक है, एसक्यूएल कमांड हो गया। अब इन्होंने आपसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, कुछ डीडीएल डीएमएल कमांड्स मिक्स करके दे दिए एंड दे हैव आस्क्ड यू टू कैटेगराइज देम वेदर द कमांड इज अ डीडीएल वन और डीएमएल वन, या आपको डीडीएल और डीएमएल में इनको सेग्रीगेट करके लिखना है। ठीक है, सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड फॉर 2 मार्क्स, तो दिस मेक्स अप फॉर 3 मार्क्स। 2 + 1 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आ गया डेटाबेस चैप्टर से। फिर 10th क्वेश्चन भी आपका डेटाबेस चैप्टर से, देख लेते हैं क्या कह रहा है बच्चा। 10th क्वेश्चन आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट से एसक्यूएल पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। एक केस स्टडी गिवन है, चारू हैज टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम MyEarth in MySQL. Now she wants to create a table named city in the database to store the records of various cities across the globe. ये सिटी टेबल का स्ट्रक्चर गिवन है, दे दिया इन्होंने स्ट्रक्चर। ठीक है, द स्ट्रक्चर हैज बीन गिवन, फाइन। और अब इन्होंने बोला है कि ये इस टास्क को ये कंप्लीट कैसे करेगी। How will Charu complete this task? That means she must first create the database now and then she has to create a table in this database. So this is for 3 marks. Fine. So ये आपका 8, 9, 10th क्वेश्चन मतलब कि आपका सेक्शन बी कवर हो गया बच्चा। सेक्शन बी में आपकी पाइथन आई 3 मार्क्स की, पाइथन अब यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। सेक्शन ए में आपने देखा था 10 मार्क्स का आपके पास क्या आया था, डेटाबेस। अब सेक्शन बी में भी आपके 2 क्वेश्चंस डेटाबेस से आए, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो 6 मार्क्स का यहाँ कवर हो गया। यानी डेटाबेस अब आपका 20 में से 16 मार्क्स का आ चुका है। तो डेटाबेस बचा आपका 4 मार्क्स का बच्चा, और पाइथन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इस सेक्शन के साथ पाइथन फुल 5 मार्क्स की कंप्लीट हो गई। ये लेफ्ट और अभी बचा है हमारे को कवर करने के लिए। नेटवर्क्स में से सेक्शन बी में कुछ भी नहीं पूछा गया। नेटवर्क्स अभी तक आपका 2 मार्क्स का आया है। दैट मीन्स अभी आपको नेटवर्क्स 10 - 2 अगर आप करो तो 8 मार्क्स का यानी वो सेक्शन सी में मिलेगा। ठीक, सो लेट्स मूव टू सेक्शन सी ऑफ द question paper. I'll also move simultaneously over here. Now here each question will carry 4 marks. There will be section C में there will be 3 questions of 4 marks each. So it is going to be of 12 marks. ठीक है ना? So there are 3 questions, 4 marks each. It is going to carry 12 marks, children. And the question numbers now would be 11, 12, 13. These are going to be the 3 questions. Internal choice you are getting in question number 12. So in each of the sections you've got an internal choice. Section A में 7th question में आई, section B में 8th question में आई, और section C में now it is going to be in question number 12 बच्चा। ठीक, तो अब देखते हैं question number 11, 4 parts, internal choice नहीं है, SQL पर based है। You have to write 4 SQL queries based on 2 tables. समझ में भी आना चाहिए और एप्लीकेशन भी आपको अब करके दिखानी। मतलब क्वेश्चन से रिक्वायरमेंट को समझो और उस अकॉर्डिंग क्वेरी को अप्लाई करो। ठीक बच्चा, सो ये A to D आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट क्वेरीज A to D बेस्ड ऑन दीज 2 टेबल्स, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ये आता ही आता है बच्चा क्वेश्चन 2 टेबल बेस्ड, और ये आपको दिए गए हैं 4 पार्ट्स A, B, C, D। इन पर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर, अंडरस्टैंड कर क्वेरी लिखनी है। ठीक, तो क्या अब हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो गया? बिल्कुल, 4 मार्क्स का ही तो बचा था, ऊपर अभी हमने देखा था 4 मार्क्स का डेटाबेस लेफ्ट था हमारा बच्चा, 4 मार्क्स का यहाँ कवर हो गया। सो दिस कंप्लीट्स आवर डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 11 पे डेटाबेस खत्म हो जाता है, बची 8 मार्क्स की नेटवर्किंग। सो बट ऑब्वियस 12th और 13th क्वेश्चन होगा नेटवर्किंग पर बेस्ड। सो क्वेश्चन नंबर 12 विद 2 पार्ट्स एंड एन इंटरनल चॉइस। ठीक है ना, इंटरनल चॉइस होगी। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, और आपसे पूछा गया है बच्चा कि इसमें कि आप ये कंसेप्चुअल एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। नेटवर्किंग इज अ कंसेप्चुअल चैप्टर। फाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू एक्चुअली थिंक कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कंसेप्ट है, नेटवर्क की टोपोलॉजिकल अरेंजमेंट है, ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क है, उसको समझ भी गए। उसके एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको बताने हैं 2 मार्क्स में। या फिर इन्होंने पूछा आपसे, अच्छा देखो मैंने अभी आपको बताया ना इसमें 2 पार्ट्स है, तो मैं पार्ट 1 अभी बता रही हूँ। पार्ट 1 में इंटरनल चॉइस है बच्चा, इंटरनल चॉइस। ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने बोला डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स www एंड वेब होस्टिंग। तो या तो आप ये 2 डेफिनेशंस दो,
या फिर आप 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताओ। पार्ट 1 में इंटरनल चॉइस है आपके पास, इसको आप यहाँ से 2 मार्क्स में फेच कर लोगे अगर आप ये ठीक से जवाब देते हो। Let's move to part 2 of it. That it will be of 2 marks again. How is packet switching different from circuit switching? So again, this is a conceptual question, but understanding होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए circuit switching कहाँ लगती है, packet switching कहाँ लगती है, दोनों में ट्रांसमिशन का क्या प्रोसीजर है, और किस तरीके से सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक स्विचिंग स्टेशंस के थ्रू एक मैसेज ट्रांसमिट करता है. दैट इज पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग. फॉर यू coming for 2 marks. Fine. So this is question 12 for 4 marks. Question 13 most easiest question और बहुत प्यारा question होता है ये, नेटवर्किंग से आता ही आता है. 13th नंबर का क्वेश्चन, 4 पार्ट्स होंगे, कोई इंटरनल चॉइस नहीं है. ये कंप्यूटर नेटवर्क से नेटवर्क डिजाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको नेटवर्क डिजाइन में जो भी चीजें यूज होती हैं, यू शुड नो देम थॉरली. When they are used, why they are used, with justification. So this is case study based question with 4 parts. Fine. 1 mark each होता है बच्चा. ये आपको इस तरीके से केस स्टडी गिवन है फॉर ये कि बी हैप्पी कॉर्पोरेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क लेआउट गिवन होता है, डिस्टेंस टू डिस्टेंस बताया होता है बिटवीन ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स. फाइन. इन ब्लॉक्स के बीच के डिस्टेंस एक टेबल होता है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक. यहाँ 4 ब्लॉक्स हैं तो चारों ब्लॉक्स का डिस्टेंस क्या है, मतलब block to block distance, and how many computers are there in each block, and based upon this data now you have to answer these 4 parts. So you need to have, और ये 4 parts ना बच्चा ये बहुत frequently repeated होते हैं, एक part कोई हद से difference होगा, otherwise it is like more or less a repeated question and very interesting question, और बहुत marks fetch करने वाला scoring question होता है बच्चा. ठीक है. So this is 4 marks question based on each part carrying 1 mark based on computer networks. So आपका computer networks यहाँ पर आ गया बच्चे 8 marks का. तो 2 marks का तो ये पूछा गया था आपसे कहाँ पर, सेक्शन ए में. सेक्शन ए में आपसे स्टैक 2 marks का पूछा गया, 2 marks का नेटवर्क पूछा गया, और 8 marks की आपसे 10 marks की आपसे डेटाबेस पूछी गई बच्चा. तो ये टोटल 14 marks का हो गया, 2 प्लस ये टोटल 14 marks का आपका सेक्शन हो गया बच्चा. उसके बाद सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चंस है, 3 marks ईच. 3 marks की आपकी इसमें पूछी गई स्टैक बेस्ड प्रोग्रामिंग, और 3 marks के 2 क्वेश्चंस पूछे गए डेटाबेस से. सो ये टोटल हो गया 9 marks. ठीक है ना. सो 14 प्लस 9 कितना हो गया, 14 प्लस आपका ये था ना 14 प्लस 9 23 marks तो आपके यहाँ हो गए, और बच्चे आपके 12 marks वो आपके यहाँ से आ गए बच्चा. ठीक है ना. सो 4 marks का आपसे डेटाबेस पूछा गया, और 8 marks के आपसे नेटवर्किंग के 4 marks के 2 क्वेश्चन, यानी टोटल 8 marks की पूछी गई. सो दिस कंप्लीट्स द एनालिसिस ऑफ योर CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर, and I will be back with its explanatory video soon. I'll see to keep the video length whether I will be coming in 2 parts or in 3 parts. I'm yet to decide upon it, but yes, it will be there for sure very soon for your help, for your genuine help from my side. And with this I close this video, children. As I always say in the end, happy learning bacha. God bless you, and do let me know if you have liked this video. मैं ऐसे भी जल्दी से complete कर देती हूँ, so that we should not leave things incomplete. और C section था हमारा 12 marks, so we have to fight for this 35 marks, and we are very confident we'll score 35 marks over here. ठीक है बच्चा. With this note I end this video, and till we meet again, children, God bless you, happy learning, and stay in touch.